بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ مہربانی فرما کر تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہرپور گاؤں جانے کے لیے بس سٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس سٹاپ پر موجود اکادکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھی، کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے ہر طرف ہوکا عالم طاری کر رکھا تھا۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کنارے کھڑا ہو گیا۔ نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ 1 منٹ میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی، شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا، اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس سٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سردی سے میری ٹانگیں کپکپانا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچا نکالی اور اسے بٹن دبا کر آن کیا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل اضطراب کے مارے بلیوں اچھلنے لگ گیا۔ میں نے ٹارچا کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی شرما کر جیسے واپس آ گئی تھی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر حوالہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی، تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا۔ شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آواز تھی جو آئے جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں۔ تیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرایا اور پلٹ کر واپس چل پڑا۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں نے ڈرتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹھرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ کافور ہو گیا اور میوں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر نہیں آئے۔ بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا۔ اوہ میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دور رہا تھا۔ شاید اس بے چینی میں میری نظر بیٹھے ہوئے بوڑھے پر نہ پڑی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں، شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، ابھی بس سے اترا ہوں۔
नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं, इंतजार में वो खड़ा था। कोई आए तो रास्ता मालूम करूं, चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा, और वो लाठी टेकता हुआ बना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत अंगेज तौर पर उसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी थी, में बावजूद कोशिश के उसके बराबर नहीं चल पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गया था। मियों ने आवाजें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हैवले की तरह मुझे नजर आ रहा था। मियों ने थक कर बैग नीचे फेंका और बैठकर ससताने लगा। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बदके हुए घोड़े की तरह हचला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी, आप मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, और मैं दूसरी तरफ इस हैवले को भी देख रहा था, जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है, ये पी लो। उसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गिला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर फटाफट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे जरा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टार्चा की रोशनी में देखी तो फौरन तय आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर फेंकी और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा, जो मेरी कैफियत देखकर पहपहे लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था, वो कपड़ा खून आलूद हो रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड़े थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी, और इसके गलीज चेहरे को और भयानक। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टार्चा हाथ में लिए चीखता चलाता सिमत का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था, जहां भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियां मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की सकत खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खा कर गिर पड़ा और किसी गड़े नुमा चीज में जा गिरा और सांस रोककर बेसुध हो गया। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वो शैतानी बल्ला नजर नहीं आई थी। मैं गड्ढे में दबका पड़ा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टक टक सुनाई देने लग गई, जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था जोर जोर से उछलाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था, ऐसा तो कहानियों में होता है, मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टार्चा लाइट ऑन करके गड्ढे में और रोशनी की तो नया धचका लगा। जहां मैं गिरा पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टक टक की आवाज अभी भी आ रही थी कि एकाएक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लमस महसूस करके समझ गया ये वही शैतानी बल्ला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बल्ला की ताकत थी। उसने मुझे तनके की तरह गड्ढे से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा किया बगाड़ा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने एक लंबा कहा लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस खा जब दुनिया सो जाती
है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तो है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफी दूर खड़ा था, मगर उसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। उसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आजाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नजर कब्रिस्तान में उगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की माननत टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। उनकी अलूह जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बल्ला का तलस्सम था, जो मेरी ताकत को शिल कर रहा था। इस असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिरकर उठ खड़ा हुआ। सामने जो देखा तो एक बारिश सफेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतानी बल्ला मेरे पीछे पड़ी है। इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बल्ला लाठी से टक टक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने मुझे कहा, बोलो, जोर से बोलो, हक हूँ, अल्लाह हूँ हर दर्द की दवा, अल्लाह हूँ मुश्किल कुशा, अल्लाह हूँ। जैसे इसके मुंह से हूँ की आवाज निकली। दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फिजा इनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा, बोलो, हक हूँ, अल्लाह हूँ। मैंने जोर जोर से दीदावार बोलना शुरू कर दिया। हक हो, अल्लाह हूँ हर दर्द की दवा, अल्लाह हूँ मुश्किल कशा, अल्लाह हूँ। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए जमीन पर गिर गया। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। मेरे बाफ्ता हवास वरद करते करते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कने पर सुकून होने लगी थी। मैं इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हुआ की माननत खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से पर सुकून रखो। फिर हुआ के झोंके की तरह वो बुजुर्ग भी हवा में तहलील हो गया। मैं इन्हें जाता देख ही रहा था कि मेरे कानों में आवाज पड़े, अल्लाह वाओ अकबर, अल्लाह वाओ अकबर। फजर की अजान की आवाज थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज की सिमत चल पड़ा। थोड़ी देर में एक गांव में दाखिल हो गया, जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके उससे अपने लिए अलाट किया। हवा घर खलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। असकू मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे। सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। उसने मुझे अपने घर से धोती और कमीज लाकर दी। नहा धोकर मैंने गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ी। सुबह नाश्ता गांव के चौधरी के पास किया। वही चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके आ गया। वहां से सीधा मैं स्कूल गया, जहां मेरी क्लास के बच्चे अपने नए उस्ताद से मिलने को बेताब बैठे थे। इतने में क्लास के मॉनिटर ने कहा कि सर, आज सबक कहाँ से शुरू करेंगे? तो मैंने कहा, सबक वहीं से शुरू करें ये जो आज मुझे मिला है। हक हूँ, अल्लाह हूँ हर दर्द की दवा, अल्लाह हूँ मुश्किल कुशा, अल्लाह हूँ हक हूँ। थोड़ी देर के बाद क्लास के सब बच्चे दीदा वार ये वरद दोहरा रहे थे।